pension a mere citizen right or a welfare scheme by government? For the last few years, this has been in topic for most of the news, and a few states such as Himachal Pradesh and Rajasthan has reversed back to the old pension scheme. So now people are thinking, why should a young generation pay for the burden of for the old generation who have already been left out of the working force? We look at the chain when people are working young, they pay their taxes to the government, including things like income tax, GST, VAT, cess, and a hell lot of taxes paid by us. Government keeps on increasing the taxes on common citizen with each passing year. They will keep on increasing taxes, they keep on increasing this, but they will never talk about the citizen rights and the citizens pension. But when they retire, it's not as if the things are getting wasted. It's the people, it's the rights of the citizens who are getting retired after working hard, after working diligently for their last 35 to 40 years. तो ये उन रिटायरी की गलती नहीं है कि स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पेंशन फंड एंड रिटायरमेंट फंड कुछ बनाया नहीं था, वेयर ऑल देयर मनी दैट दे आर पेइंग पार्ट ऑफ देयर मनी could be put together and used, which could generate better return from where they could be paid. It is the right of every citizen, not only just government employees, to get pension, to get a dignified life, because all of us have worked for such a long time, tiring period for the development of the nation. अगर हम कुछ दूसरे कंट्रीज़ को देखते हैं लाइक नॉर्वे, उनके वहाँ पे rate of taxes might be much higher, like 40-50% जनरल पीपल आर पेइंग. बट अगर हम लोग उनके सोशल सिक्योरिटीज़ को देखेंगे, लाइक फंड्स पेड टू द रिटायरीज आफ्टर दैट एट द एज ऑफ 65, और उनके स्कूलिंग्स को देखेंगे, हेल्थ केयर, देट आर मच हायर देन अस. हम अगर और उनके कंपैरिजन में अगर हम सोचेंगे, हम दूसरों की बातों पे माने, और हम अगर सोचेंगे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे जा सकते हो, आपकी ये बहुत बड़ी गलती होगी. आप उनके फर्स्ट साइट पे जा नहीं पाओगे, एंड यू विल टोटली इग्नोर दैट बिकॉज दे आर सच एट डिलापिडेटेड सिचुएशन. According to one survey done in 2011 by Statista, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से बात कर रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू देम द बिगेस्ट नंबर ऑफ बेगर्स जिस एज ग्रुप में आते हैं वो 60 to 69 में आते हैं, जो कि किसी भी कंट्रीज़ के लिए बहुत ही शेमफुल एंड रिग्रेट करने की चीज़ है, और ये हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा है. ये इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी से भाग रही है. हम एक रिटायरी को जो रिटायर हो चुके हैं, अपने वर्किंग पीक से गुजर चुके हैं, उन्हें एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं दे पा रहे. एक पेंशन सिर्फ एक पैसा नहीं होता, सिर्फ एक फ़ंड नहीं होता है. ये किसी के एक लाइफ के लिए किसी पे इंटरडिपेंडेंसी नहीं बना पाता है. वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकते. कोई आप देखोगे कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आता होगा कि हिमाचल प्रदेश ने अपने 20% ऑफ रेवेन्यू, जो कि आप बजट के हिसाब से देखेंगे उनके स्टेट का, 70% खर्च कर देते. बट ये ऐसा क्यों हुआ है? हम अगर इसको जानेंगे, उनके पॉलिटिशियंस ने कभी कुछ सोचा ही नहीं, ना कोई एक फ़ंड बनाया गया था उनके हिसाब से. दे वे जस्ट अ शॉर्ट साइटेड पॉलिटिशियन जिन्होंने एक की गलती को दूसरे पे पास किया. बट ऑन द हाइंड साइड देखेंगे, उनके स्टेट्स के जो सिटीजन्स है, जो कि एम्प्लॉइज़ है, जो अभी रिटायर हो रहे, दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, they are living a respectful life. People should think that we are not a mere tool for a government to generate revenues and where they can get the taxes. We are respectful living citizens, जो कि after we paid such a huge amount of taxes, 30% टैक्स पे करते, 20% GST पे करते, 5% इवन कि हम अपने खाने के राशन पे भी टैक्स पे करते. So after paying those amount of taxes, we are not a mere napkin that will be thrown away. Just after working for 40-50 years. People need money, because in this world nothing is white and black, it's green that matters. People should be provided with the pension fund, not only government employees. मैं सिर्फ government employees की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ every citizens. They should be provided a pension fund. There should be a proper mechanism, जो कि अब शायद धीरे धीरे बनने लगे हमारे देश में, ताकि हर कोई अपना छोटा सा अमाउंट पुट कर सके होल थ्रू द 30-40 ईयर्स, एंड बाय द एंड ऑफ दैट 60 और 65 ईयर्स, जो कि सही हो उस टाइम के हिसाब से. आफ्टर दैट वो लोग जितने भी साल जी रहे, टिल द टाइम दे लिव टू 80, 85, 90,
उनको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, नहीं तो गवर्नमेंट किस काम की है। अगर हम लोग को एट द एंड वी आर एट द डायर सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ, वी कांट गेट एनी हेल्प फ्रॉम अ गवर्नमेंट, then there is no meaning of a government. We should get money and we should get help.